فی اللہ کی تحمیل بقا کا راز مضمر ہے. جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. چھٹی ہونے والی ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. دوسری بات کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا. ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے تاکہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. کوئی کچھ پوچھنے آئے کچھ مسئلہ مسائل تھوڑا بہت جو بھی ہے تو لوگوں کے سامنے آپ اس کو بتائیں گے جا کر. ذی الحجہ کا مہینہ قرآن کریم نے قسم اٹھایا ہے والفجر ولیال عشر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا جو شروع والا 10 دن ہے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اور اس کی رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے بدل ثواب. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جو 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اس قدر فضیلت ہے جس طریقے سے یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے زندہ کرنے کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ مہینہ بڑی خیر اور برکتوں والا ہے. اس میں آدمی عبادت کر کے بہت سارے ذخیرے جمع کرتا ہے لیکن اس کو معلوم ہوگا تب تو. اسی مہینے میں قربانی کی جاتی ہے. اسی مہینے میں قربانی کی جاتی ہے 3 دن تک. اب قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو قربان کر دیں, کسی چیز کو فنا کر دیں. جب کسی چیز کو فنا کر دیں گے تو وہ چیز اس سے بہتر ہو ظاہر ہوگی. جیسے مثال کے طور پر لوہا کو جب گرما کر ڈال دیتے ہیں تو اس سے جہاز بنا لیتے ہیں. کتنا قیمتی ہوتا ہے جہاز. اسلحہ بنا لیتے ہیں, طرح طرح کے اوزار اور آلات بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے مٹی ہے, مٹی کو لے جا کر جب بھٹے میں پیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو پکا کر پھر لاتے ہیں تو اس سے اینٹ تیار کر لیتے ہیں, سیٹ سے مال تیار کر لیتے ہیں. فنا فی اللہ کی تحمیل بقا کا راز مضمر ہے. جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربانی کرنے کے لیے لے کر چلے مذبح گاہ کی طرف. واقعہ بہت مفصل ہے, وقت نہیں ہے. ایسے حالات میں جب بڑھاپا اور بہت دعا سے بہت ہی فکر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن اللہ کے حکم کے آگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں, بس تیرا کیا خیال ہے, غور کر لے, فانظر ماذا ترى. اب دیکھیے بیٹا بھی ایسے یہ فیضان نظر تھا یا مقصد کی کرامت تھی. سکھایا کس نے اسماعیل کو آزاد فرزند دی. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر رہا ہے, تم میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. غور سے سنیے, قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قربانی جب اخلاص کے ساتھ کوئی جو اپنی حیثیت کے مطابق جو صاحب نصاب ہے جب وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب ترازو اعمال کے تولے جائیں گے اس وقت 70 گنا اضافہ کے ساتھ جانور کا خون اور اس کا گوشت لایا جائے گا اور
तराजू में रखा जाएगा और वो तराजू नेकियों वाला, नेकियों का पल्ला वो झुक जाएगा, और जिसकी नेकियों का पल्ला झुक जाएगा उसके लिए जन्नत में जाना तय है, जन्नत जाना आसान होता है। और जो लोग गोश्त खाने के लिए कुर्बानी करते हैं, या जो लोग कोई हैसियत नहीं समझते हैं, सुन लीजिए कान खोलकर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजदा सादन फलम युज़की फला यक़ुबल्ला मुसल्लाना, जो वसात पाए और उसके बाद कुर्बानी न करे तो हमारी मस्जिद के करीब न आए, मस्जिद में छोड़ दो। सबसे सख्त वहीने हमारी हुई है। चुनाचा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए जो लोग गोश्त के लिए या दिखाने के लिए बड़े से बड़ा जानवर लाकर कुर्बानी करते हैं, दुकान खोलकर सुन ले, अगर वो खुद कुर्बान हो जाए और अपना सारा मालो दौलत कुर्बान कर दें, अल्लाह के यहाँ मकबूल होने वाली चीज नहीं। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है, महशर में 3 किस्म को लोगों को अल्लाह ताला बुलाएंगे। उनमें से एक आलिम होगा, आलिम का गिरोह होगा, यानी उस किस्म के जितने लोग होंगे सब उसमें शामिल होंगे। एक मालदार को बुलाया जाएगा, एक शहीद को बुलाया जाएगा, मालदार से पूछा जाएगा कि मैंने तुमको इतनी बड़ी नेमत दी थी, दौलत बहुत बड़ी नेमत है, दौलत से आदमी अपनी जन्नत बना सकता है, लेकिन यही दौलत यह ऐसा सबब भी बन सकती है जो आदमी को वीरान कर दे, यहाँ के लिए भी और वहां के लिए। इसलिए अल्लाह ताला पूछेंगे कि इतनी बड़ी हमने नेमत दी थी, तुमने कहाँ खर्च किया इसको? कहेगा अल्लाह ताला, कोई खैर का रास्ता ऐसा नहीं था, कोई भलाई का ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें हमने खर्च न किया हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुमने गरीबों को इसलिए दिया था ताकि जो लोग सभी कहेंगे, तुमने हर खैर के रास्ते में ऐसा खर्च किया था, लोग उसको मालदार कहेंगे, इसलिए तुमने किया था, तो कहा जा चुका और उसको औहदे को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरीके से आलिम को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा तुमने अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया, इल्म क्या किया मैंने तुमको दिया था? वो कहेगा अल्लाह मैंने इल्म को सीखा और लोगों को सिखाया और उसकी इरशाद किया तेरी रिज़ा के लिए। अल्लाह ताला कहेंगे ये भी झूठ है, सो कहा जा चुका, उसको भी औहदे में उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद शहीद को बुलाया जाएगा, उसके कहा जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे तुमने अपनी जान को मेरे लिए क्यों कुर्बान किया? वो कहेगा अल्लाह ताला तेरे इस्लाम की सरबलंदी के लिए, तेरे दीन की सरबलंदी के लिए, तेरी रिज़ा के लिए मैंने अपनी जान का नज़ारा पेश किया। अल्लाह ताला कहेंगे झूठ बोलता है, सो कहा जा चुका, उसे भी औहदे में जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो किस लिए कहते लोग उसको शहीद और बहादुर कहेंगे? अब आप सोच लीजिए कितनी खतरनाक चीज है, बदनीयती और बदअखलाकी। आप दौलत भी खर्च कर रहे हो, कान खोलकर छोड़ लीजिए, शहीद जो अपनी जान का नजराना पेश करता है, जान से बढ़कर कोई कीमत नहीं हो सकती दुनिया में, जिसके पास कोई चीज ही नहीं, लेकिन जरा सा भी नीयत में डगमग, नीयत में थोड़ा सा फायदा हो गया तो देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया, जान भी गई और दुनिया भी गई, जहन्नम भी गई। तो इसलिए आप ये देखिए, ये कुर्बानी भी करना है तो बहुत इखलास के साथ, डरते हुए कि अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला से हर वक्त सर पर सुजूद रहना है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारे अमाल। तो आप छुट्टी हो रही है, अपने घरों जा रहे हैं, तो लोगों को तरगीब दीजिए। बहुत से लोग सिर्फ यही जानते हैं कि उनके पास अगर पैसा है तो सोचते हैं कि हम साहिब निसाब है। नहीं भाई, अगर सोना भी है 7.5 तोला तब भी आप साहिब निसाब है, या 52.5 तोला चांदी है तब भी आप साहिब निसाब है, या जरूरत से ज्यादा सामान है, या आप एक प्लाट में रहते हैं, दूसरा प्लाट आपका जो है वो अगर है तो उससे भी आप ज़कात हो जाएगी, साहिब निसाब हो जाएंगे। या इस तरीके से एक दुकान है जो तिजारत की है और लोग समझते हैं कि तिजारत का माल, तो दुकान है तो ये जरूरत के लिए नहीं भाई, दुकान ही तिजारत के लिए, इसमें भी अगर आप निसाब के बगल में माल है तो आप साहिब निसाब हो जाए। इसलिए कुर्बानी जिन लोगों के ऊपर वाजिब है उसके बारे में बताइए, और लोग साहिब निसाब होने के बावजूद मरहूमीन के नाम कर देते हैं और उनको पता नहीं अपना साहिब निसाब है, अपनी तरफ से देंगे, मरहूमीन की तरफ
रखिए, याद रखिए वो गुनाहगार होंगे, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मरहूमीन के लिए अगर वो कुर्बानी कर देंगे तो उसका जवाब तुमको पहुंच जाएगा, लेकिन जो लोग साहिब निसाब हैं उनके ऊपर पहले जिम्मा है कि वो खुद कुर्बानी करें। तो मैं ये कह रहा था कि कुर्बानी की बहुत फजीलत है। ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और इसमें बहुत इबादत में मुनम्मिद होने का महीना है। तिलावत करें, नफली नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम कुर्बानी के जानवर कुर्बानी के बदले उसकी कीमत दे दिया करें जानवर की, तो अल्लाह ताला के यहाँ पसंद नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है कि एक आदमी बहुत नेक, वो हर साल कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका कर दिया करते। उन्होंने एक दिन कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं महशर में और लोग पुरसरात से जन्नत से जा रहे हैं अपनी सवारियों से। मैं परेशान हूँ कि या अल्लाह कोई सवारी नहीं है और लोग सवारियों पर बैठकर जन्नत से जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एकदम इसलिए मुश्किल था, या अल्लाह ये कहाँ से इंतजाम होगा सवारी का। अचानक एक नगमगी आवाज आई कि तुम कुर्बानी नहीं किया करते थे, इसलिए आज तुम्हारे लिए सवारी नहीं है। चुनाचा और जब बेदार हुई तो उन्होंने जितने साल कुर्बानी नहीं की थी उससे तौबा किया अल्लाह ताला से, और फिर जो भी जिंदगी वो पाए वो हमेशा कुर्बानी करते रहे। इसीलिए हदीस पाक में आता है सब मिनो ज़हायाकुम व इन्नहा लसिराति मसायाकुम, अपने कुर्बानी के जानवरों को खिला कर मोटा करो, ये तुम्हारे लिए पुरसरात और सवारियां बनेगी। इसलिए मुद्दा ये है कि कुर्बानी के जानवर को खिलाए उससे मोहब्बत करे और उसके अपने हाथ से उसको ज़बह करे। और उसके भी तमाम मसाइल हैं कि ज़बह करने वाले के लिए ये है कि वो किबला मुख होना जरूरी है। उसके लिए जानवर का किबला मुख होना तो मुस्ताहब है, लेकिन जो कुर्बानी कर रहा है, और इसी तरीके से याद रखें जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जरूरी है। अगर भूल कर पढ़ दिए तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ दिए तो वो जानवर हराम हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा। और यदि याद रखिए दो लोग, कभी एक आदमी अनाड़ी होता है तो दूसरे आदमी छुरी पकड़कर उससे कटवाते हैं, तो दोनों का पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। इसलिए उसके मसाइल लोगों को जाकर अपने घरों में बताइए, और छुट्टी होने वाली है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। जाकर खूब तबलीग कीजिए, तारीफ कीजिए। आप लोग जाकर सिर्फ खेलने में मशगूल हो जाते हैं और इधर उधर ईरान कुरान की और दुनिया भर लवाजमात में फंस जाते हैं। आप लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, इसलिए जाएं, अपना लिहाज रखें, अपना ख्याल रखें। बातें बहुत हैं, लेकिन समझदार के लिए एक बात ही काफी है। जैसे भले घोड़े के लिए चाबुक काफी है, ऐसे समझदार के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। आप लोग समझदार हैं, इसलिए जाकर अवाम में खूब मसाइल को बताएं, खूब तबलीग करें, ठीक है। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखें इंशाअल्लाह गांव में, इलाके में लोग सही तरीके से उनको कुर्बानी करने का ढंग पैदा हो जाए। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कौन? हम रात भर तकलीफ करते रह जाएं, दिन भर तकलीफ करते रह जाएं, लेकिन उसके बाद अमल न करें जाकर। हम आपको यहाँ समझाते हैं, आप जाकर गांव में बिगड़ जाते हैं, दूसरे कामों में आपका जो काम है करना वो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए भाई अगर कहीं कोई बात बताई जाए तो उसको दिल के कान से गहराई से सुनकर उसको दिल में उतारिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और कुर्बानी ये हमको पैगाम देती है कि अगर इस्लाम पर कहीं किसी तरीके का कोई वार हो रहा हो या इस्लाम किसी तरीके से लड़ने में आ रहा हो, तो इस्लाम के गयूर नौजवानों सुन लो, अगर मां की जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम अपने मां को कुर्बान कर देंगे, और अगर जान की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम अपनी निजी जान को खेलते कूदते अल्लाह की राह में जान को भी कुर्बान कर देंगे।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے قربانی سے کہ اگر کسی بھی طریقے سے اسلام کو ضرورت پڑ گئی تو انشاءاللہ ہم ہر چیز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ تو آپ کو دعوانا الحمد